Assalamu alaikum, student of final year. I hope you all are fine. Today we are starting this course, and first of all we will discuss the pharmaceutical care, its scope and its importance. What is pharmaceutical care? The detailed lecture of pharmaceutical care is recently uploaded for the 4th year class in the course title 616, and go through it. Here I am just giving or revising the definition of the pharmaceutical care. Basically, pharmaceutical care is the provision of the clinical service that is helpful for the patient care. And the term pharmaceutical care is basically coined now. Previously, it is considered as clinical pharmacy, which is the main responsibility of the physician. Now, the responsibility is shifted towards the pharmacist. Now, pharmacists cooperate with the patient and other professionals for the development and for the implementation and for monitoring of the therapeutic plan. Now, it is the responsibility of a pharmacist to develop a therapeutic plan or a care plan, then implement the designed care plan, and then after it is also the responsibility of the pharmacist to monitor a therapeutic plan. And the goal of this whole procedure is to improve the patient quality of life. What is the scope? Scope basically comprises of two sections. One is job related, that what a person will excel its in job, कि वो जॉब में कितना प्रोग्रेस करेगा. तो फार्मेसी प्रैक्टिस जो है एक न्यू इमर्जिंग फील्ड है और इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है. एंड द मेन ग्रोथ इज इन द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स and research centers and clinical centers where there are patients से related जो भी हमारे पास research है वो pharmacy practice के अंदर आएगी. So now the pharmaceutical care has been evolved on the basis of emphasis that there should be a prevention of the drug related problems. Initially the patient is suffering from a specific type of disease, but mostly after the initiation of the treatment the patient is exposed to the drug related problem, and it is the main responsibility of a pharmacist to prevent the drug related problem. यानी बेसिक हमारा जो फंक्शन है फार्मासिस्ट का, सबसे मेन फंक्शन जो है वो है कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो प्रिवेंट केयर करे, एंड टू एक्सटेंड द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर द ट्राइएज ऑफ द पेशेंट, in which there is a patient, there will be the health practitioner and the pharmacist. Monitoring its treatment regarding the acute illness, or there will may be the management of the chronic disease. यानी most of the time the patient may be suffering from the acute illness, कोई emergency situation है, कोई fever है, कोई infection हो गया है, और जब blood glucose level high हो गया है, कोई emergency situation हो, there may be an acute illness and there may be a chronic disease. For example, there may be a hypertension, there may be diabetes, there may be an epilepsy or any other neurological disorder. So, for the management of chronic and acute disease simultaneously, it is the main role of the pharmacist to prevent the drug related problems. यानी patient जो है वो expose है अब drug से, और drug related problems को prevent करने की जो main responsibility है वो scope of the pharmacy practice के अंदर आती है. It means कि हम ये कह सकते हैं कि the role of pharmacy practice emphasis on the shifting of the dispensing role of the pharmacist towards the patient care. However, हम ये नहीं कह सकते, we cannot imply that the pharmacist is no longer responsible for the dispensing function. The main function of the pharmacist is also a dispensing. यानी अब अगर ये एक condition है आपके दिमाग में आई, you are at the final year students, कि एक कंडीशन ये दिमाग में आती है कि मेडिकल स्टोर पे खड़े होंगे तो इट्स लुक बैड. नो, बट अगर आप अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंट इंटरेक्शन वहां डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सर्व विथ योर गुड सर्विसेज. तो वहां पे आपने बेसिकली प्राइमरी डिजीज प्रिवेंशन में भी रोल प्ले करना है, डिस्पेंसिंग का रोल भी प्ले करना है, एंड देन पेशेंट केयर, पेशेंट कम्युनिकेशन, पेशेंट एजुकेशन का रोल भी प्ले करना है. If we compare the previous responsibilities, then initially in traditional pharmacy, the primary focus was on the prescription order or OTC request. Just the main focus on the OTC request. However, in clinical pharmacy,
this function was previously more performed by the physicians or other health professionals rather than pharmacists. But in case of pharmaceutical care, now the patient is important, and this pharmaceutical care is a continuous process, and it is still continue, and in which there are the participation of the patient, doctor, nurses, and the pharmacist. And the main strategy is to anticipate or improve the patient care, and for that purpose the pharmacist may disagree, may disobey the physician order. यानी जो physician ने जो prescription generate किया है, pharmacist may change it. In traditional pharmacy, the strategy of the pharmacist is to just obey. आंखें बंद करके आपने वो ड्रग दे दी है. ये ट्रेडिशनल फार्मेसी है जो कि अभी भी पाकिस्तान में यही हो रही है काफी पॉइंट्स पे. There is no checking of the prescription, there is no cross checking, no re-evaluation of the prescription. इस वक्त जो फार्मेसी का हाल है वो बहुत ही बुरा है पाकिस्तान में, and it needs a person which are those who are standing on the pharmacy, they need to re-evaluate the prescription. Either the prescription is right or wrong, or maybe there are certain drug related problems which need to be changed, which need to be improved. It is a duty of the pharmacist to find the fault, to prevent the fault, and to improve the prescription for the sake of the patient care. In traditional pharmacy, the main focus on the drug product, and the main focus is on the sale of the drug product. Now, however, in pharmaceutical care, the main focus is the outcome of the patient. कि patient की health improve होनी चाहिए. This is the main outcome. This is the main important role of a pharmacist in a pharmacy practice. अगर वो ये role play नहीं कर रहा, it is useless to being a part of pharmacy practice. आप कोई और field select कर लें, लेकिन फिर pharmacy practice को select ना करें. So the main role for a pharmacist in a pharmacy practice is to highlight, is to control the medication error, and pharmacists should be trained specifically to address the therapeutic issues. जो भी problems patient को आ रहे हैं, it is the duty of the pharmacist to train himself or herself to resolve these therapeutic issues. And furthermore, several times it may happen कि जो पेशेंट है वो डायरेक्टली फार्मेसी आता है और अपना प्रीवियस जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके मुताबिक वो दोबारा ड्रग जो है वो परचेज कर लेता है. इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, एंड एट दिस लेवल इट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू काउंसिल द पेशेंट दैट इज इट इज आइदर द नीड ऑफ द फॉलो अप फॉर द फिजिशियन और एज सच मेडिकेशन परचेजिंग इज फाइन फॉर हिम. इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू चेक इट, टू काउंसिल द पेशेंट हु इज कमिंग टू इट्स फार्मेसी. And another problem is that there are number of complexity and changing in the prescription, and one prescription is changing from the another prescription, and इसमें बहुत ज़्यादा complexion है, and this complexion के लिए उसको solve करने के लिए it need times. और at a time आप फौरन नहीं कर सकते. आप जब फार्मेसी पे खड़े होकर ड्रग डिस्पेंस कर रहे होंगे तो पेशेंट को तो फौरन ड्रग चाहिए. तो इतनी इंफॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए कि विद इन अ मिनट, विद इन अ 5 मिनट वो पेशेंट को काउंसिल कर सके. फर्दरमोर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रोडक्ट का यूज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट कि वो काउंसिल करें कि टू से नो फॉर द ड्रग, के अगर अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे वो पेशेंट को काउंसिल करे कि उसको मना करे कि नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग ड्रग. Furthermore, American healthcare system emphasize that each patient separately needs for the pharmaceutical care, and it is the main responsibility of the pharmacist for the future. In short, we can say that pharmaceutical care is a continuous process in which the patient profile is revised, reassessed by a pharmacist, and the drug may add it to the regimen, may delete it to the regimen. A brand may change from one brand to the another brand depending upon the intervention of the physician, and the patient is when returned to the pharmacy and or readmitted to the healthcare facility, the pharmacist should use the patient profile by using of the pharmacy workup plan, कि वो किस तरह उस प्लान को लेता है, and he has to make certain documentation. उसको पूरे एक डॉक्यूमेंटेशन, एक चेकलिस्ट उसको बनानी है फार्मासिस्ट को, जिसके थ्रू वो पेशेंट को प्रोफाइल चेक करेगा. यानी ये मैनुअली या वर्बली काम नहीं होगा.
there is a need of establishment of the documentation procedure at each level. सब यानी बिल्कुल इनिशियल लेवल, 0 लेवल पे तमाम प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है. हॉस्पिटल लेवल पे बहुत सारी जगहों पर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है. अगर वो अच्छा गुड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जस्ट लाइक आगा खान, लियाकत नेशनल, दे आर मेकिंग सम टाइप्स ऑफ नोट्स. However, the development of the plan is the main responsibility of the pharmacist now. These farm notes or prime notes and soap notes, which are the pharmacist work plan, should be maintained in the patient pharmacy chart or in a medical chart in a form of file. And this is the basics for the ongoing pharmacist-patient interactions. So the main component of the pharmaceutical care is the pharmacist and the pharmacist-patient relationship. And for that purpose, pharmacist has to design a certain workup for the drug therapy, which is called as PWDT. The most important section of this PWDT, which is the pharmacist workup of drug therapy, pharmacist should have a very caring relationship with the patient, so that the patient will again revisit the pharmacy. Otherwise, if the pharmacist's behavior is not good, then the patient will not revisit the pharmacy. So initially or at each level, the pharmacist should be very polite, in a very good manner he has to deal with the patient. यानी उसका जो communication है with patient के साथ वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही impressive होना चाहिए, कि so that कि और उसकी नॉलेज बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि जब पेशेंट आपसे इंस्पायर होके जाएगा तो ही विल डेफिनेटली रीविजिट यू. इवन अब तो ये सिनेरियो हो चुका है कि डॉक्टर के साथ जब पेशेंट का इंटरेक्शन होता है तो पेशेंट भी फील करता है कि दे आर वर्किंग फॉर द मनी. सो आपने अपना बिहेवियर ये शो करना है कि आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, बट यू आर बेसिकली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट. और इस कंडीशन के लिए जिसमें आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर पेशेंट आपके पास आएगा. व्हेन यू आर ग्रैबिंग द मिस्टेक्स, और जब आप उसको बताएंगे और जब आप पेशेंट का ख्याल करेंगे और उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप उसको एक्सपेंसिव मेडिसिन के बजाय आप उसको चीप मेडिसिन देंगे ऑफ गुड क्वालिटी, आप मेडिसिन को डिस्पेंस करेंगे, तो फिर उसकी इम्पैथी आपसे डेवलप होगी एंड देन ही डेफिनेटली रीविजिट यू. दिस अगर ये प्राइमरी केयर है और आप सिर्फ नॉर्मल कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी पे है फार्मासिस्ट, तो ये वर्क प्लान बनाना बहुत मुश्किल है. सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर में वेयर हॉस्पिटल्स आर इन्वॉल्व, वहां पे ये प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे प्लान बनाना और बहुत उसको मॉनिटर करना, डेवलप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट इंटरेक्शन अगर अच्छा नहीं है तो पेशेंट विल नेवर कम बैक. हाउएवर, हम पहले मेन कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, फिर पाकिस्तान के हिसाब से हम उसको फिर वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. लेकिन क्या प्रोसीजर है वर्क प्लान बनाने का, जो उसका वर्कअप है फार्मासिस्ट का, वो इनिशियली इट इज बेस्ड ऑन दी डेटा कलेक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी डेमोग्राफिक्स ऑफ द पेशेंट. यानी पेशेंट का जो डेमोग्राफिक डेटा है, ही हैज टू कलेक्ट द डेटा इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट. ही हैज टू डिजाइन सर्टेन फॉर्मेट जो कि ऑलरेडी प्रिंटेड हो, जस्ट लाइक फॉर्म हो, जैसे कि आपका एडमिशन फॉर्म होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म होता है. तो इसी तरह एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो है वो डिजाइन कर लिया जाए, जिसमें स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन हो जो कि आस्क होती है क्वेश्चन यूजुअली, और वो फिर केस हिस्ट्री के फॉर्म में चीजें जो है वो उसमें एड अप होती चली जाती हैं. आखिर में मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाऊंगी जिसमें ये फॉर्म अवेलेबल है, और इंटरनेट पे भी बहुत सारे अवेलेबल है, डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है. इनिशियल जो डाटा कलेक्शन है, इट इज दी पेशेंट डेमोग्राफिक डाटा इंक्लूडिंग द नेम, एज, सेक्स एंड रेस. And second section of the data collection is based on the pertinent medical information, which is mainly based on the current medical history and the past medical history. दोनों problems जो है वो simultaneously इसमें focus होंगे कि what is the main current medical history and the past medical history. Then there may be a family history, may be possible. For example, if you are talking about diabetes, family में run होती है, ठीक है. तो अगर एक family में है तो it means कि genetic tendency है उस इंडिविजुअल के अंदर टू डेवलप सच डिजीज. सिमिलरली विद सोशल हिस्ट्री में हमारे पास ये अगर कि उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, कोई ड्रग है जो कि एडिक्टेड है, सिगरेट स्मोकर है, और इस तरह की जो कंडीशन है जो जिसमें सोशल इम्पैक्ट है उसका, वो हम सोशल हिस्ट्री में लिखेंगे. देन वी हैव डाइटरी हिस्ट्री, कि वो डाइट में क्या क्या लेता है और क्या क्या नहीं लेता, व्हाट ही वांट्स इन अ डाइट. Then its medication history, previously what medications are present in its prescription, in over-the-counter drug or any other social addicted drugs, and information about the allergies. It also collected
in a data collection procedure. Then what will be the physical findings, including the weight, height, blood pressure, edema, and certain other laboratory tests जो कि पेशेंट ने करवाए होंगे, and usually या blood test or urine test. For example, there may be a level of the serum levels of the potassium, serum creatinine level, or etc. Then what is the main patient complaint? किस वजह से पेशेंट जो है वो वहां पे आया है? अगर हॉस्पिटल है तो फिर उसका क्या है, तो यहाँ से फिर हम डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, एंड देयर मे बी अ सोप नोट फॉर्मेशन और एनी अदर फॉर्मेट जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम पेशेंट की नीड के मुताबिक हम एक कोर नोट जो है वो फार्माकोथेरेपी का प्लान जो है वो डिजाइन करेंगे. कोर जो एक्रोनिम है, इट इंडिकेट दैट सी इज द कंडीशन और द पेशेंट नीड. किस कंडीशन के और किस प्रॉब्लम को लेकर पेशेंट ने विजिट किया है हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर. तो जो कंडीशन है, इट इज द मेन फोकस, एंड व्हाट आर द आउटकम फॉर दैट कंडीशन, यानी डिजायर्ड आउटकम्स क्या है. आइदर देयर मे बी अ क्योर ऑफ द डिजीज, और देयर इज अ मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज, और देयर इज अ डिक्रीज प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज. यानी हमारे पास तीन ऑप्शन है. ये आउटकम्स हमारे पास क्या क्या होंगे, या तो ये कि पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, या देयर इज ओनली मैनेजमेंट इज पॉसिबल, या मैनेजमेंट भी पॉसिबल नहीं है, एंड वी ओनली स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज. देन वी हैव द regimen selection to achieve that outcome. यानी core CORE में R stand for regimen selection, and then E is the evaluation of the parameters to achieve the outcomes. Core and SOAP notes both are very simple, और उसमें detailed information जो है usually achieve नहीं होती है. However, आगे इसको हम अगर continue करें for the prime pharmacotherapy plan, which is the basically problem oriented pharmacotherapy plan, that is indicated for the pharmacist interventions. यानी pharmacist intervention के लिए जो अच्छा प्लान है वो प्राइम फार्माकोथेरेपी प्लान है, जो कि हम और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो अपने जो भी केस स्टडीज है उसको सॉल्व करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम को करेंगे. यानी इनिशियली आपने सोप नोट लेना है या कोर, दोनों को ले सकते हैं. सोप या कोर की बेसिस पे आपने इनिशियल डाटा कलेक्ट कर लिया, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व योर केस हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ prime pharmacotherapy problem oriented plan, because it is the main plan directed by the pharmacist intervention. What is the goal of this plan? The goal of the prime pharmacotherapy plan is to identify the actual or potential problems that could compromise the desired patient outcome. यानी हमने पहले हमने regimen select कर लिया है, या physician ने regimen select कर लिया है to achieve the outcome, but there are several problems that can lead to the compromisation of the desired patient outcome. यानी पेशेंट का जो आउटकम है वो फौरन अचीव नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ हर्डल्स आएंगी, एंड these hurdles should be reported in the prime pharmacotherapy plans. प्राइम का जो एक्रोनिम है, इट स्टैंड, P stand for pharmaceutical, R stand for risk to the patient, I stand for interaction, M stand for mismatch between the medication and the condition of the patient that needs, and E stand for efficacy issues. तो प्राइम जो है वो हमारा बेसिक फोकस है, हम इसको लेते हुए जो है वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे जो टेबल 2 है हम साइमल्टेनियसली इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फार्म नोट्स को डिस्कस करेंगे. दिस इज दी प्राइम फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम ओरिएंटेड फॉर्मेट. इसमें जो फार्मास्यूटिकल है वो उसमें क्या क्या हम देखेंगे, फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, जैसे कि हम अपने दिमाग में रिवाइज करें. फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स में हमारे पास डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, व्हाट फॉर्म would be available, liquid form, solid form, what are the frequency of the drug, and what are the timing. And mainly problems may occur in that scenario. Pharmaceutical problems कहाँ हो सकते हैं कि maybe there may be a wrong dose, there may be a low dose, there may be the high dose. Route of administration में ये हो सकता है कि हमने रूट गलत सेलेक्ट किया है, या रूट जो है वो लीथल है या डेंजरस है. फॉर एग्जाम्पल अगर एनसेड्स हैं और वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो रही है, नॉर्मल हमने उसकी फॉर्मुलेशन ली है, एंटेरिक कोटेड नहीं लिए, देन इट विल डैमेजिंग, तो वो पेशेंट को जो है वो अल्सर कॉज करेगा. फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स में हम फार्मास्यूटिकल के प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे. जो भी हमने ड्रग सेलेक्ट की होगी उसकी डोज, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, इस ड्यूरेशन की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिकेशन, व्हाट विल बी द टाइमिंग, किस ड्रग को किस ड्रग के साथ देंगे. It all come under the pharmaceutical problems. Then what are the risks to the patient?
If we talk about the risk to the patient, we should know the known contraindication. जितनी भी आपको contraindication जो भी ड्रग है उन तमाम की contraindication याद हो. याद नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे ये कहूं कि आप 1000 ऑफ contraindication जो है simultaneously याद कर लें, लेकिन एटलीस्ट एक contraindication एक ड्रग की तो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर याद नहीं आप क्या करें, तो फिर याद करेंगे, और अगर याद नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते, याद भी नहीं कर सकते, तो देन यू हैव एन एप्लीकेशन इन योर मोबाइल जिसमें जो डेटा है वो आप उसको एनालाइज कर सकें. ठीक है, तो यू शुड नो द कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड फर्दरमोर आप जब पेशेंट से डिस्कस करेंगे देन पेशेंट मेडिकेशन एलर्जी शुड बी नोन, कि आपको पता हो कि पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि पेनिसिलिन जो है वो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है. ऑगमेंटिन जो है वो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होती है. हाउएवर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एनाफाइलैक्सिस है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, और स्पेशली अगर ऑगमेंटिन जो है वो आईवी जा रही है और आईवी जा रही है और आप और उसको जो है वो ड्रग को हम दे रहे हैं और उसकी एलर्जी हमने नहीं एवेल्युएट की, तो इट मे बी लीथल टू द पेशेंट. विद इन एन आवर जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो वर्सन होगी ड्यू टू दी पेनिसिलिन, ड्यू टू दी ऑगमेंटिन. तो एलर्जी हमें पता हो कि किससे एलर्जी है, और फिर अगर खुदा ना खास्ता एलर्जिक मेडिसिन यूज कर ली है तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना भी आना चाहिए कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको आपने कैसे रिवर्ट बैक करना है. ठीक है, व्हाट आर दी ड्रग इंड्यूस्ड प्रॉब्लम. जो ड्रग दे रहे हैं इट इज अ पॉइजन, ये जहर है. अगर आपको पता हो कि वॉरफेरिन जो है एंटीकोगुलेंट ड्रग है और बहुत इफेक्टिव है फॉर दी कार्डियोवैस्कुलर कोगुलोपैथीज, लेकिन इनिशियली ये क्या था, इनिशियली इट वाज दी रैट किलर. इट वाज अ रैट किलर बिकॉज कि ये जो है वो रैट को देते थे और ये ब्लड ब्लीडिंग जो है उसकी इनहांस कर देता है, और अगर अनकंट्रोल है तो फिर ये ब्लीडिंग इनहांस कर देगा. तो बहुत सारी जो हमारी ड्रग्स हैं दे आर लीथल, दे आर टॉक्सिक. वी शुड नो द ड्रग इंड्यूस्ड प्रॉब्लम. हमें पता हो पहले से कि हम ये जब ड्रग देंगे तो इससे क्या होगा. देन अगर ड्रग इम्प्रॉपर यूज होगी तो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर टूवर्ड्स द पेशेंट. अगर वो एडिक्टेड हो रहा है पेशेंट तो फिर क्या मसला होगा. तो तमाम चीजें जो है वो हमें गाइड करनी है पेशेंट को कि व्हाट आर द रिस्क टू द पेशेंट. फर्दरमोर फॉर द रिस्क ऑफ द पेशेंट मेडिकेशन एरर्स शुड बी कंसीडर्ड, शुड बी चेक थॉरली, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट. और इसके लिए ये कि बहुत ज्यादा फार्मासिस्ट मिलकर काम करें. देन वी हैव द इंटरैक्शन चेकिंग. इंटरैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग फूड इंटरैक्शन, ड्रग डिजीज इंटरैक्शन और ड्रग लैब इंटरैक्शन. ठीक है, ये 4 मेन इंटरैक्शन हो सकते हैं जो कि हमारे पास प्राइम के अंदर हम लिखेंगे. यानी जब हम अपनी केस स्टडी सॉल्व करेंगे हम प्राइम का फॉर्मेट सामने रखेंगे. इसकी जो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, एक एक हेडिंग को आप चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे. प्राइम में PRI हम कर चुके हैं जो कि हमने स्टैंड किया है. प्राइम P स्टैंड फॉर फार्मास्यूटिकल, R स्टैंड फॉर रिस्क टू द पेशेंट एंड I स्टैंड फॉर इंटरैक्शन. नाउ M and E आर लेफ्ट. अगर हम M and E की बात करें तो M is the mismatch between the medication and indications and conditions and complaints, and E is for the efficacy issue. Mismatch क्या है कि जो medications दिए हैं they are not indicated for the condition, या medications are used without indication. This is the irrational use of the drug therapy. या patient ने खुद ही assume करके ले ली है और उसने काउंसिल ली, उसने फॉलोअप, उसने फिजिशियन से जो है वो डिस्कस नहीं किए प्रॉब्लम, एंड विदाउट इंडिकेशन विदाउट कंप्लेंट जो है वो ले लिए, या फिर कंडीशन जो है वो अनट्रीटेड है और मेडिसिन नहीं ली है. ठीक है, देन वी हैव द एफिकेसी इशू. एफिकेसी इशू क्या है कि देयर इज द सब ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ द फार्माकोथेरेपी. सब ऑप्टिमल सिलेक्शन क्या है कि जो राइट डोज की वो सिलेक्ट नहीं हुई या राइट ड्रग सिलेक्ट नहीं हुई. ठीक है, एफिकेशियस नहीं है. हमारी जो फार्माकोलॉजी में हम 2 चीजें देखते हैं, एफिकेसी एंड सेफ्टी. एफिकेसी एंड सेफ्टी तो सब ऑप्टिमल सिलेक्शन है और उससे अच्छी ड्रग थेरेपी, उससे सेफ थेरेपी अवेलेबल थी, लेकिन डॉक्टर ने किसी भी वजह से जो है वो सब ऑप्टिमल सिलेक्शन की है इंडिकेशन के लिए. ठीक है, या फिर इस तरह की एफिकेसी इशू है कि जो ड्रग है वो उसका इफेक्ट, जो थेरापेटिक इफेक्टिवनेस है वो अब रिड्यूस हो चुकी है और न्यूअर थेरेपीज जो है वो अवेलेबल हैं. अनदर प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट ने जो मेडिसिन ली है, टेकिंग और रिसीविंग द मेडिकेशन आर इनकरेक्ट वे. जो पेशेंट ले रहा है वो करेक्ट वे में ले ही नहीं रहा कि वो एब्जॉर्ब हो सके. फॉर एग्जाम्पल इनहेलर है,
इनहेलर सही तरीके से, आप अगर इनहेलर को यूज नहीं कर रहा है तो वो ड्रग जो है वो लंग्स में नहीं जाएगी एंड देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन। तो फिर अगर एस्थमा का अटैक आ रहा है या एस्थमा का पेशेंट है तो इट मे बी डेंजरस फॉर द पेशेंट, ठीक है। It is a duty of the pharmacist to solve all efficacy issues or counsel the patient properly. Furthermore, there are patient preferences. क्या है patient preferences? That may be possible कि patient ने वो पहले कभी दवा ली हो and he had or she had a prior experience of undesirable effect. On the basis of these effects, the patient is resistant to take the medicines properly. या फिर अगर सिम्टम्स कंट्रोल है, पेशेंट जो है वो छोड़ छोड़ के मेडिसिन ले रहा है, कंटिन्यूस मेडिसिन नहीं ले रहा, तो कौन सी कंडीशन है कितने कंटिन्यूस मेडिसिन की जरूरत है, कौन सी कंडीशन है जिसमें हम डोज स्किप कर सकते हैं। और फर्दरमोर बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पेशेंट का बिलीव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी काउंसलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट का बिलीव होता है उसी के हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो उसका फैसला फरमा देते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन अवेलेबिलिटी should be considered, medicine compliance should be considered, medicine adherence should be considered. So एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है compliance में कि the patient is unable to purchase a medicine, ठीक है, या unable to administer because may be possible वो geriatric patient हो, may be possible वो child हो, उसकी जो attendant है वो इतने educated नहीं हो, तो it is a duty of pharmacist to resolve all type of issues, ठीक है। कौन कौन से issues हमने cover कर लिए हैं? We have covered pharmaceutical issues, we have covered risk to the patients, we have covered interactions, we have covered mismatch between the medications and the indications, and then we have also discussed the efficacy issues. So after the development of the pharmacotherapy plan and after the identification of the pharmacotherapy problems, यानी हमने पहले डेवलप कर लिया प्लान और फिर फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फार्माकोथेरेपी प्रॉब्लम्स, नाउ थर्ड स्टेप इज टू फॉर्मुलेट अ फॉर्म प्रोग्रेस नोट टू डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट द इंटरवेंशन इंटेंडेड और प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट। ये थर्ड स्टेप है फार्मासिस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी का, जिसमें जो फार्मासिस्ट है ही हैज और शी हैज टू फॉर्मुलेट द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट बनाना है और इसमें भी एक्रोनिम यूज हुआ है। फार्म नोट इज बेसिकली एफ स्टैंड फॉर फाइंडिंग, ए स्टैंड फॉर असेसमेंट, आर स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन एंड एम स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग एंड दी फॉलो अप। नाउ द फार्मासिस्ट विल फॉर्मुलेट अ फॉर्म नोट्स। इसमें जो है वो फाइंडिंग्स में बेसिकली पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुड बी देयर एंड इट इज अ बेसिकली समराइज वे कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम इंडिकेटेड है जिसपे फोकस होना जरूरी है। एंड व्हाट आर दी असेसमेंट कि कौन कौन सी हमने असेसमेंट कर ली है, व्हाट इज द फार्मासिस्ट एवेल्युएशन ऑफ द फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग दी एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बेस्ट असेस द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू मेक रिकमेंडेशन। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि द सीवियरिटी, प्रायोरिटी और अर्जेंसी ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी रिपोर्टेड कि कितनी हमारे पास सीवियरिटी है, क्या प्रायोरिटी है, क्या अर्जेंसी है। हर चीज जो है वो अर्जेंट नहीं है और कुछ जो है वो नॉर्मल वे में डील हो सकती है जिसपे हम डाटा कलेक्ट करके काम कर सकते हैं और कुछ फॉरन जो है वो एट अ टाइम इसको रिजॉल्व करना होता है। देन it is the decision of pharmacist that either there will be the short term goals or there may be a long term goals. For example, short term goals क्या है कि you have to eliminate the symptoms initially. सबसे पहले आपने symptoms resolve करनी है और symptomatic treatment जो है वो start होता है। physician भी symptomatic treatment ही को पहले फोकस करते हैं और जो symptoms हैं जो कि primary complaint है वो reduce होते हैं। इसीलिए पेन किलर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, कफ सप्रेसेंट, एंटी एलर्जिक्स या मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग बिकॉज इससे सिम्टम्स जो है रिलीव होती हैं। सिम्टम्स सबसे पहले जो है वो रिलीव करने हैं, लेकिन आफ्टर दी एलिमिनेशन और आफ्टर दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म गोल इट इज फॉलोड बाय दी लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कि जो डिजीज है वो मैनेज हो जाए, या तो एलिमिनेट हो जाए या मैनेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म गोल्स में हम देख रहे हैं कि बीपी अगर बहुत हाई है या एस्थमा फ्लेयर अप हुआ है तो फिर इट शुड बी कंट्रोल विदाउट दी हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के बगैर जो है वो मैनेज हो जाए, ठीक है, बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन इज अ कॉस्टली प्रोसीजर फॉर अ पेशेंट। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कि देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर एटलीस्ट अप टू द लेवल ऑफ 135/80 एंड फर्दरमोर प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डायबिटीज, prevent the complication of the diseases,
ये हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में है तो हम ये जो है वो प्लान जो है वो चेंज नहीं कर सकते डॉक्टर का, ठीक है। अभी तक इतनी प्रोविजन जो है फार्मासिस्ट को नहीं मिली है। इट्स लेंदी प्रोसीजर कि अगर वो कोई चेंज करवाना चाहता है फिजिशियन की पॉलिसी को, तो इट विल टेक टाइम। उसमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ड्रग रिक्वेस्ट फॉर्म होता है उसका, वो फिर फिजिशियन को फिर वो नोटिफाई कराना पड़ता है कि दिस इज द प्रॉब्लम, और ये सारी चीजें हाईलाइट करके ये नोट्स जो है वो फिर सबमिट होते हैं फिजिशियन को, फिर वो अपना जो है वो डिसीजन चेंज करता है। तो देयर आर द रेजोल्यूशन विच इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन के जो इंटरवेंशन प्लान है, इट शुड इंक्लूड सो एंड सो प्रपोजल कि ये अगर हम प्रिकॉशंस ले लेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच एंड सच प्रॉब्लम, तो वो इंटरवेंशन जो है दिस इंटरवेंशन शुड बी सबमिटेड टू दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि वो आगे वाले लेवल पे हो जाए। यानी ये ना हो कि पेशेंट के अंदर ये पिक्चर आए कि फिजिशियन गलत प्रिस्क्राइब कर रहा है, या आपने उसकी गलती को इस तरह हाईलाइट नहीं करना है, बल्कि आपने साइलेंटली ये फॉर्म, ये जो प्रोसीजर है वो आपने फिजिशियन को भिजवाना है अलग से, विदाउट नोटिफाइंग द पेशेंट के वो प्रॉब्लम आगे से सॉल्व हो। अगर कोई ऐसा बड़ा अगर प्रॉब्लम उसमें आपने देखा है, कोई ऐसा मेन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है या कोई ऐसी लीगल आपने चीज देखी है, तो यू शुड नोटिफाई टू दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल थ्रू दिस फॉर्मेट्स, एंड द रैशनल फॉर चूजिंग दी स्पेसिफिक इंटरवेंशन शुड बी स्टेटेड, बिकॉज वहां पे आपका इंटरेक्शन डॉक्टर के साथ है। आपने वहां पे ये शो नहीं करना है कि आपको बहुत कुछ आता है, नो, दोनों को बहुत कुछ आता है, और वहां पे किसी की एक चीज लैकिंग है, किसी की दूसरी चीज लैकिंग है। फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस में आप एक्सपर्ट नहीं है, आपने उसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज को आप कंक्लूड नहीं कर सकते, तो मेन डायग्नोसिस है और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का जो हक है इवन अभी डॉक्टर ही के पास है, और उसको आपने ओबे करना है। इन पाकिस्तान जो ट्रेडिशनल फार्मेसी प्रैक्टिस में उसको ओबे ही किया जाता है, लेकिन आपने नोट कर लेनी है चीजें जो कि जहां पे प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड है, जो इंटरेक्शन, अगर कोई मोस्ट ड्रामेटिक इंटरेक्शन आपने अगर नोट किया है तो आपने नोट करके आपने फिर ऊपर लेवल पे ट्रेनिंग और मुख्तलिफ वर्कशॉप के जरिए उसको चेंज करवाना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट, और यहीं पे आपकी वर्थ है कि आप किस तरह उनको कन्विंस करेंगे विदाउट डिग्रेडिंग देम, क्योंकि अगर आप डिग्रेड करेंगे तो फिर आपको भी डिग्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट एंड काउंसलिंग ऑफ द हेल्थ केयर प्रोविजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द फार्मेसी वर्क। It is a part of the patient's pharmacy chart और the patient pharmacy database। इसमें इस पैटर्न पे कुछ ना कुछ दवा गो जो है वो काम कर रही थी। Here the duty of the pharmacist is to counsel the patient and to educate the patient or a caregiver। ठीक है, सबसे पहले जो है वो काउंसलिंग जो है वो जिम्मेदारी है फार्मासिस्ट की। देन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रिस्क्राइबर। ये जो रिकमेंडेशन का काम है ये अलग से होगा, पेशेंट के थ्रू नहीं होगा, ठीक है, पेशेंट के जरिए नहीं होगा और किसी और अदर हेल्थ प्रोफेशनल के जरिए नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बल्कि हाईलाइट करना मकसद नहीं है, आपने यहाँ पे पेशेंट केयर को फोकस करना है, और पेशेंट केयर को फोकस करने के लिए काम जो है वो इंटरनल डिपार्टमेंट्स में प्रोसीजर्स होते हैं जिसके जरिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जिसके थ्रू आपने वो इंटरेक्शन रिपोर्ट करके फिर वो ऊपर से बंद करवाना होता है। और यहाँ पे कहीं कहीं राइट है फार्मासिस्ट के पास टू विथहोल्ड द मेडिकेशन, बट यहाँ पाकिस्तान में मसले हो जाते हैं, इसको हम फर्दर पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दीज आर दी इंटरवेंशन के जो रेजोल्यूशन है वो फार्मासिस्ट इसमें दे सकता है। लास्ट पॉइंट इज दी मॉनिटरिंग एंड दी फॉलोअप। इस फॉलोअप मॉनिटरिंग इज मेनली रेस्पॉन्सिबल, और इसमें हम क्या देखते हैं, वी असेस द एफिकेसी, सेफ्टी एंड आउटकम ऑफ द इंटरवेंशन, and this portion includes the improvement of the parameters, for example decrease in the pain, decrease in the depression, change in the serum potassium level। वो जो भी हमारे आगे प्रॉब्लम थी, प्राइमरी कंप्लेन थी, जो सिम्टम्स थी वो रिड्यूस हो चुकी है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट इंटेंशन ऑफ द मॉनिटरिंग इज द मॉनिटरिंग ऑफ द टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग। Then it is also important that how these parameters are monitored. Either you have interviewed the patient, either you have seen the lab results of the drug levels, or there may be a physical examination के physicians जो है वो infer कर रहा है कि there is the improvement of the patient health being। You also notify the frequency of the monitoring, यानी you guide the patient to come back weekly or come after a month or within 6 months, and what will be the duration of the monitoring। For example, in case of antibiotic treatment, usually it is up to the duration of the antibiotic।
until resolve them, and it is duration of monitoring can go up to the 1 year. Those diseases which needs the which only manage, जो कि सिर्फ मैनेज हो सकती है, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को भी मॉनिटर करना होता है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू एंटिसिपेट द डिजायर्ड फाइंडिंग, कि क्या उसकी फाइंडिंग थी वो कंफर्म आपने करनी है. आइदर देयर विल बी नो पेन, पेन खत्म हो गया. अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पेन कंप्लेन थी, वॉकिंग प्रॉब्लम थी, तो वो पेन रिजॉल्व हो गया. देयर मे बी अ यूग्लाइसीमिया था कि यूग्लाइसीमिया हो गया, मीन्स के नाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स द नॉर्मल, और देयर इज अ हीलिंग ऑफ लीजन. कोई प्रॉब्लम थी पाँव में, अगर डायबिटिक फुट है और वहां पे कोई जख्म हो गया है, एंड देयर इज नाउ हीलिंग ऑफ द लीजन आफ्टर द यूज ऑफ द पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स. तो वो सब आपने एंटिसिपेट करना है. और अगर फॉलो अप में इफ आउटकम इज नॉट अचीव्ड, देन देयर विल बी अ डिसीजन पॉइंट टू ऑल्टर द थेरेपी. एंड यहाँ पे आपने सजेशन करना होगा, सजेस्ट कर सकते हैं आप डॉक्टर को, लेकिन मेन ड्यूटी इस वक्त पाकिस्तान में तो ये चेंजिंग ऑफ थेरेपी और ऑल्टरेशन ऑफ थेरेपी इज रिजर्व फॉर दी फिजिशियंस. और ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट इज स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ द पेन. अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पुअर मैनेजमेंट ऑफ पेन है, जो करंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई थी वो दीज आर अनएबल टू कंट्रोल द पेन. फॉर एग्जाम्पल कैंसर में भी यही होता है कि कीमोथेरेपी की जो प्रॉब्लम्स है उसमें पेन बहुत ज्यादा है, तो पेन अगर कंटिन्यूस है, परसिस्ट है फॉर 3 days, मोर देन 3 days, देन प्रिस्क्रिप्शन नीड टू बी री एवेल्युएटेड. फर्दरमोर, अगर यू फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट है, अगर यू ग्लाइसीमिया नहीं हो रहा एंड देयर मे बी माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया और देयर मे बी फ्लक्चुएशन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट मीन्स के मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है, इट मीन्स के कंट्रोल सही नहीं है. अगर या तो बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया, इट मीन्स के डोज ज्यादा है. अगर अप एंड डाउन हो रही है, इट मीन्स कि वो इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर रहे. ठीक है. और अगर ड्यूरेशन 2 वीक से ज्यादा हो चुका है, तो इट मीन्स टू रीचेक द थेरेपी. जो भी थेरेपी दी गई है उसको दोबारा चेक किया जाए. So this is the pharmacist workup of the drug therapy. First of all, the collection of the data or the soap notes, and then the development and identification of the core pharmacotherapy. जो भी problems थे वो report की जाएं. Then identify the prime pharmacotherapy problems. कौन कौन सी problem हो सकती है, and then formulate a farm progress note. ठीक है. ये पूरा workup line है जिसके अंदर मेजर 4 sections हैं. Very difficult work. बहुत ही मुश्किल काम है. कैसे करें? इतने सारे काम हैं और पेशेंट जो है वो हाथ नहीं आता. पेशेंट हाथ आता है तो हम उतने स्किल्स नहीं रखते. ठीक है. या फिर हमारी जो केयर प्लान है हम उस तरह डेवलप नहीं करते, या हमारे पास फिर जब हम जॉब में होते हैं तो वी डोंट हैव टाइम. तो टाइम कब है? टाइम अभी है. ठीक है. अपने आप को आप इस तरह से ग्रूम करें कि इस सेमेस्टर में आप ये तमाम स्किल्स जो है वो सीखें. व्हाट आर द स्किल्स विच यू रिक्वायर टू बी डेवलप इन यू? यू हैव टू असेस द पेशेंट क्विकली. आपने पेशेंट को बहुत जल्दी क्विकली जो है वो आपने असेस करना है. आपने विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट जो है आपने पेशेंट को देखकर, जब आपके पास वो फार्मेसी में आ रहा है तो आपने पेशेंट को असेस करना है, जिसमें देयर मे बी अ फिजिकल असेसमेंट, देयर मे बी सर्टेन बैरियर्स एंड देयर मे बी सर्टेन साइकोसोशल इश्यूज. साइकोसोशल इश्यूज जो है हो सकता है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस ना कर सके, लेकिन यू आर अवेलेबल एट ईच टाइम. आप अवेलेबल है तो आप जो है वो पेशेंट डील कर रहे हैं. पेशेंट से आप अपना इंटरेक्शन इंप्रूव करें. एंड आफ्टर इंप्रूविंग दी इंटरेक्शन, देन यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट एंड यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट. यू हैव टू डेवलप सर्टेन इंटरव्यू स्किल्स. अपने अंदर जो है वो स्किल्स डेवलप करें. कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह डेवलप करें कि यू हैव टू डेवलप एम्पैथी. यू हैव टेंडेंसी टू लिसन, कि आपने लिसन करना है, पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनना है. कोई सी भी उसकी लैंग्वेज है, कोई सा भी उसका वे है, आपने उसको इस तरह करना है कि आप उसी का हिस्सा है, आप उसके फ्रेंड हैं, आप उसके दोस्त हैं. ठीक है. और आपने फिर उसको इतने एक्यूरेट वे में, स्पेसिफिक वे में उसको स्पीक करके, उसको राइट करके, आपने पेशेंट के जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, आपने उस लेवल पे आके उसको समझाना है. The main target is to motivate the patient and main target to inspire the patient. यानी हम जो इंसान है, हम कब काम करते हैं? जब हम किसी से इंस्पायर हो जाएं, जब वो हमें कोई मोटिवेशन पैदा करते. तो इसीलिए इट्स योर ड्यूटी टू नॉट टू डिसअपॉइंट द पेशेंट. कभी भी ये नहीं कहेंगे पेशेंट को कि ये तो हो नहीं सकता, यू विल डाई, ये तो अब जो है वो, अब ये जो है प्रोग्रेशन इतनी वो है, सीवियर है कि अब आप इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है.
इससे आपकी जो है आप पेशेंट को डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको मौत के करीब कर रहे हैं। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ फार्मासिस्ट और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपने हमेशा हर एक को मोटिवेट करना है, आपने हर्डल्स पैदा नहीं करने। यू हैव टू मोटिवेट इट, यू हैव टू इंस्पायर द पेशेंट बाय योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप से आपने उनको मुतासिर इस तरह करना है कि यू हैव एन एबिलिटी टू मोटिवेट द पेशेंट। देन यू हैव टू डेवलप द प्लान, जो कि अभी हमने डिस्कस किया उसी हिसाब से आपने डेवलप करना है और आपने एजुकेट करना है पेशेंट को। फर्दर मोर आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनका मसले को हल करके पेशेंट को बताना है कि यूं भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स है, ये इसके इंटरवेंशन है, ये है, तो आप यहाँ चले जाएं, फला जगह चले जाएं। अगर कॉस्टली उसको पड़ रहा है पेशेंट का विजिट, तो आप दूसरों को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आपका जो पेशेंट इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पेशेंट स्पेसिफिक फार्मासिस्ट के प्लान हमने डिस्कस कर लिए हैं कि वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू प्रिवेंट एंड वी हैव टू मैनेज द ड्रग इंटरेक्शन। We should know the initial pharmacology, we should know the therapeutics, and we can able to interpret the lab results. At a time, फौरन ही आपको देखते ही अंदाजा हो जाए कि क्या मतलब चल रहा है। HbA फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन लो हो रहा है, आप फौरन एनीमिक है पेशेंट, उसमें फर्दर उसमें कंप्लेंट्स आएंगी, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। एनसेड कंटिन्यूस यूज कर रहा है तो अल्सर हो सकता है या गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है, तो वो आपको पहले तो उसको जो है वो गाइड करना है ताकि पेशेंट मेंटली प्रिपेयर रहे। फिर आपको लेटेस्ट नॉलेज आपको पता हो, कम्युनिटी रिसोर्सेज आपको पता हो, प्रोफेशनल रेफरेंस आप कर सके, और आप जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनसे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो, ताकि आप अपने मसले उनको डायरेक्ट अलग से पेशेंट के सामने नहीं, अलग से उनको डिस्कस करके अपने मसले अपने प्रॉब्लम्स बता सके कि पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स हैं, ये सही होना चाहिए। ठीक, बहुत ही मुश्किल ड्रग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये मेंटेन करना, ये डेवलप करना और फॉलो अप करना और फार्मासिस्ट और क्लिनिशियन की जिम्मेदारी है, जो कि अभी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यू हैव टू adhere, you have to monitor, you have to improve the system। जहाँ पे जीरो से आपने स्टार्ट करना है वहां पे आपने अच्छे सिस्टम को लेते हुए चलना है। जबानी कलामी कुछ नहीं होता है, हर चीज को रिटर्न में होना चाहिए, हर चीज को राइट अप में होना चाहिए। इससे जो है मेडिकेशन एरर भी रिड्यूस होते हैं और आपको प्रीवियसली डेटा को ट्रेस करने में भी आसानी होती है। बहुत सारी चीजें जो है वो लिखने से खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स में और जो एनिमल्स है उनमें डिफरेंशिएट हम अगर करें तो इसी बेसिस पे कर सकते हैं कि वी कैन स्पीक, वी कैन कम्युनिकेट एंड वी कैन लर्न, वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो हमें जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में ये अपना जो फंक्शन है हमें परफॉर्म करना है। देन वी हैव टू मेक अ डोजेज एडजस्टमेंट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट for the risk when it is either exaggerated or there may be a sub-therapeutic response. We have to apply the pharmacokinetic principles. We know the dosage. We know कि बॉडी के अंदर जाकर ये 50% जो है ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी. What will be the frequency? और अगर डोज स्किप हो रही है तो क्या होगा? You have to determine the patient specific dose. बच्चों में क्या होगी? जीराटिक्स में क्या होगी? प्रेग्नेंट वुमेन में लेंगे नहीं लेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है? लैक्टेटिंग वुमेन्स में देंगे नहीं देंगे? रीनल फेलियर के पेशेंट है उनमें ये ड्रग जाएगी नहीं जाएगी? हेपेटिक फेलियर के ड्रग पेशेंट है उनमें ये ड्रग जाएंगी नहीं जाएंगी? यू शुड ऑल नो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड ऑल्सो नो दी थेराप्यूटिक ऑल्टरनेटिव्स। ये मैं जरूर करवाती हूँ कि ताकि जब आप कोई भी मेडिसिन करें ले तो आपका उसका ऑल्टरनेटिव पता हो। यू शुड नो दी थेराप्यूटिक ऑल्टरनेटिव एंड फॉर दैट पर्पज यू हैव टू रीड एंड राइट एंड यू हैव टू डू लिटरेचर सर्वे। जब आप फार्मेसी में आप एंटर हो गए हैं तो आप जब हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर हो गए तो इसलिए कि आपने पूरी जिंदगी पढ़ने की जिम्मेदारी उठा ली है। अब आपको बहुत पढ़ना है, आपके पढ़ने से जान नहीं छूट सकती। ठीक है, आप ये कहें कि आज मैंने पढ़ लिया या 4 साल या 5 साल के बाद मुझे पढ़ने की जरूरत होगी, नो। आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखने के लिए आपको बार बार पढ़ना है, बार बार आपने रिसर्च करनी है, बार बार सर्च करना है। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको स्टॉप कर दूं, फिर दूसरे सेक्शन में फिर दोबारा करूं। बस हम ये वर्क फ्लो देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी ये बेसिकली मैंने दोनों क्लासेस के लिए रिकॉर्ड किया है, 4th ईयर के लिए भी एंड फाइनल ईयर के लिए भी, ताकि जो हमारा वर्क अप प्लान है ड्रग थेरेपी का वो एक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो और यू शुड एनालाइज द डेटा। 4th ईयर के लिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वो सोप नोट ही बना लें तो बहुत है।
ठीक है, लेकिन फाइनल ईयर को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि यू शुड मेक द प्लान्स अप टू दी फार्म नोट्स। फार्म नोट्स तक आपने बनानी है, यानी आप 100% काम का सोचेंगे तो कुछ 70% 80% तक आप जो है अप्रोच करेंगे। पहले आप ये कोशिश करेंगे, जो भी हम केस स्टडी में आपको दूंगी असाइनमेंट में, जो भी हमारी लैब में हमारी केस स्टडीज है, वो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, और उसका जो आंसर चेकिंग है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसके लिए आपने जो डिजाइन करना है वो इसी पैटर्न को फॉलो करना है, यानी सोप नोट, कोर नोट्स, प्राइम नोट एंड फार्म नोट, ये चारों पैरामीटर्स आपने साइमल्टेनियसली लेकर चलने हैं, ताकि जब आप अपनी केस स्टडीज को सॉल्व करें तो आप बहुत ही इफेक्टिव मैनर में उसको डील करके आपको तमाम चीजें उसकी पता चल जाए। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, वर्क फ्लो क्या है कि डेटा कलेक्शन है, रिव्यू द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, रिव्यू दी मेडिकेशन प्रोफाइल। ठीक है, वर्क फ्लो ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर में आपको अलग वीडियो में डिस्कस करेगी, उसकी वीडियो बहुत लंबी होगी। थैंक यू और